Good evening, everyone. I am Captain Vipul Chaudhary, retired. I am ex-8 Gurkha Rifles infantry officer. My civil qualifications that I have been in the financial industry for 15 plus years now. I started my journey in the financial industry in the year 2008. Besides that, I am MBA Finance from MDI Gurgaon, class of 2008. I did a regular from MDI Gurgaon. And prior to joining army, I had done Bachelor of Arts in Law. I kind of have a financial legal educational background and 15 plus years in financial industry. Now, today's talk, although will focus on financial investments and planning and a very broad sense of how financial should be, but my effort would be entirely to try and make it as simple as possible. I personally do not believe that पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस फॉर दैट मैटर इज एनी हाउ कॉम्प्लेक्स. उसको बहुत ज़्यादा जार्गनाइज करके बड़ी बड़ी बातें करके और ये हमारे ही कम्युनिटी की आदत है कि उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए क्लाइंट्स के ऊपर. द फैक्ट इज फाइनेंस इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड इट कैन बी डन. एनीवन कैन मैनेज देयर मनी इफ दे नो 10वीं तक का बेसिक अरिथमेटिक्स. उससे ज्यादा की गणित की भी किसी को जरूरत नहीं होती है. दैट इज ऑल व्हाट पर्सनल फाइनेंस के अंदर जितनी फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है. So I have a presentation and this would be a talk about general finance and slightly about people who are retiring at the age of 55 or 60 years of age. What are the specific steps they can take or I mean recommended steps ये कर सकते हैं. So I'll start the presentation, and once the presentation is done, there'll be a couple of Excel sheets for some basic calculations which anyone who desires, I'll share it in the groups. किसी को नहीं है, कोई ग्रुप में नहीं है तो मेरे से अलग से भी मांग सकते हैं. So I'll start with the presentation. That's about me. मेरे numbers हैं, अगर आप में से कोई नोट करना चाहे तो you're most welcome to note them. That's my email ID. Okay. So what are the financial stages of life? Actually, our financial decisions most of the times should be, and without us even knowing, are mostly based on the age we are at. Our early years, 25 से 35 साल, are the early career years, wherein we have just started working. Could be anything, not just armed forces officers. Anyone who has just started working, 25 से 35 साल, early career years. नेक्स्ट इज द फैमिली एंड करियर बिल्डिंग ईयर्स. जब आप 35 प्लस होते हैं, मैरिज को डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू गेट मैरिड, यू हैव 1 or 2 चिल्ड्रन. Now you are building, you're raising your family, your career has started to grow. Now you're getting senior in your career. 10 साल का आपको लगभग 10 से 12 साल का अनुभव हो चुका होता है. कुछ प्रमोशंस मिलना शुरू होते हैं. And then you enter the third phase, which is the 45 to 55 years, which is when you start discharging initial obligations. Like, for example, अपने घर खरीदना. अक्सर लोग लेट 30s में, अर्ली 40s में अपने खुद के रहने का घर खरीदने लग जाते हैं. लेट 40s 45 के आसपास जब वो लोग आते हैं, सो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन एजुकेशन ऑफ देयर किड्स, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड सिमिलरली they start building their assets for their own retirement. तो ये सारी कार्रवाई ज्यादातर 30 से स्टार्ट होती है and it continues till 45, 55. Now moving ahead, when you start hitting the 55 to 65 bracket, that is when you are still discharging your liabilities. घर का लोन पे ऑफ हो गया है, एक आधा और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया है, and you are now in a pre-retirement kind of a phase wherein you're still active, you're working and you're discharging your liabilities also. बच्चे अगर और बड़े हो गए तो है, अपने आपने जो और assets create करने थे वो है. And then 65 to 75 is when you start looking at early retirement. You have retired, you now work for around 35-40 years. Now you have accumulated certain money, you have accumulated assets, your children are settled. If there was a business, it has been handed over to the next generation or is in the process of the next generation getting trained. And then comes the 75 to 85 years, which is the late retirement phase of human being. I'm not saying that, there's no life after 85, but broadly speaking, this is how the financial life is kind of, I would say, aligned to the age and other related aspects of an individual's life. What are the steps for retirement financial planning? First step, and as I said, मेरे हिसाब से
फाइनेंस को बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप सबसे पहले अपना एक पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम शीट बनाइए, नॉर्मल बेसिक गणित कि मेरे खर्चे कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है और मेरी आमद कितनी है, मुझे इनकम्स अलग अलग हेड्स में कितनी है। उसके बाद में एक सेल्फ डायग्नोस्टिक फाइनेंशियल हेल्थ बनाइए अपनी, कि आपके खर्चे आपकी आमदनी के अंदर फर्क कितना है और उसके हिसाब से आज आप किस स्थिति में हैं, आपकी कितनी लाइबिलिटीज फ्यूचर में आने वाली हैं, उन लाइबिलिटीज को कौन से समय में आने वाली हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको आज से क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। एंड देन इन पहली दो चीजों के बेसिस पर एक फाइनेंशियल प्लान डेवलप कीजिए। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की असल में कोई जरूरत नहीं होती है। बट एनीवेज, अगर मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा तो शायद लोगों को लगेगा कि इसको काम नहीं आता है, इज्जत नहीं मिलेगी। बट अभी मैं आप लोगों को एक बार सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस और इनकम शीट एक बेसिक्स है उसके ऊपर दिखाता हूँ। सो दिस इज बेसिक एक्सेल, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, मेजर एक्सपेंसेस, रेंट एंड मॉर्गेज। अब जब भी अपना पर्सनल रिव्यू करते हैं, यू शुड ट्राई एंड वर्क विद डेटा, एंड उससे आपको बहुत चीजों का आइडिया मिलेगा। बहुत सारे लोग, इट हैज बीन सीन टाइम एंड अगेन, वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने में परेशान होते हैं, बट दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो रेंट, कार लोन का ईएमआई, आपका महीने का फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कितना है, आपके व्हीकल्स के रिपेयर्स के खर्चे कितने हैं, स्कूल एंड कॉलेज फीस कितनी है, योर मेसिंग रिक्वायरमेंट्स इफ देयर आर 3 individuals, 4 individuals, 5 individuals, any other loan or EMI which you are paying. Other than that, miscellaneous expense, miscellaneous लिखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि miscellaneous expenses को जितना फाइन अकाउंटिंग आप करेंगे, उतना you will be able to have a better control on your financial planning. So first lesson which I would say is a good personal financial planner is someone who will be a good personal accountant. अगर आप अपने खर्चों का ब्यौरा भी नहीं लिखते हैं और आप ये बेसिक अकाउंटिंग भी नहीं करते हैं, सो देन आपके लिए अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं कि मैं पैसे कहाँ लगा रहा हूँ, क्या खर्च कर रहा हूँ। देन हेल्थ एंड फिटनेस, व्हाट आर मेडिकल एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, यूटिलिटीज, व्हाट डू यू पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सेल फोन। छोटे छोटे खर्चे जो हम, बहुत बार इनमें कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, बट वी डोंट टेंड टू जॉट देम डाउन, वी डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड। हम बहुत ब्रॉड चलते हैं कि हाँ, मैंने महीने में 2 लाख रुपए कमाया, मेरा 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, मैंने महीने में 1 लाख रुपए कमाया, मेरा 50,000 रुपये खर्चा हुआ। वाई इज दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंस इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंस gives you the first indication as to what it is that you are spending maximum on, what you will be needed to spend in future। यही तो आपके आगे आने वाले टाइम में भी खर्चे होंगे, कौन से खर्चे इनमें से बंद हो जाएंगे, और उसके बेसिस पर आप अपना नेक्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लेंगे। इंश्योरेंस, contingencies, how have you planned for them, what kind of expenses you make for them, then helps and services which you utilize. You can add on to the sheet. I'll be sharing the sheet with all the viewers here. Subscriptions and memberships, how many of them are there, how many of them are needed. Then your recurring expenses जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, बट क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली होते हैं। यू हैव टू गिफ्ट पीपल, यू हैव टू गो टू मैरिजेस, यू हैव टू बाय क्लोथ्स, you have to carry out your house repairs or maintenance after every 4 5 years. You have to have replacement of your household items. 5 7 साल में एसी खराब हो जाएगा कब। So are you actually creating provisions for them? Are they a part of your financial planning, or you just react when a thing happens? When you get into this kind of a detailing, it helps you understand as to how your present financial health is, where you stand. इसमें डिस्कम्फर्ट आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये आपको ये बताता है, ये सच्चाई फेस करने वाली बात है, आईना देखने वाली बात है। एंड देन व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, व्हाट काइंड ऑफ एसआईपी, आपने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स करी है उनकी ईएमआई, और कोई अगर आप इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो। यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट्स में जानबूझ करके इंश्योरेंस को नहीं रखा है। इंश्योरेंस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड टुवर्ड्स द एक्सपेंस साइड इन द कंटिजेंसीज टू बी प्लान। और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट इज टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स which includes your life and health both. And then this side is the column which talks about salary, pension, any kind of a dividends you are receiving from your existing investments,
rental incomes, interest income on your debt investments, इनकम फ्रॉम, अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपने वहां से जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस या जो आपको और कोई आपको पहले की इन्वेस्टमेंट्स है उनसे जो इनकम सारी, इन सब का टोटल। एंड ये वाला जो कॉलम है जहाँ पे अभी कर्सर टिका हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या आज की डेट में मैं सरप्लस हूँ या शॉर्टफॉल हूँ। सो दिस इज लाइक योर, जैसे हेल्थ का बीएमआई कैलकुलेटर होता है, एम आई अंडरवेट, एम आई फिट, एम आई ओबीज, एम आई मोrbidly ओबीज। इससे आपको पता लगेगा, एम आई फाइनेंशियली स्टिल नॉट देयर, एम आई फाइनेंशियली हेल्दी, एम आई फाइनेंशियली वेरी हेल्दी, एम आई फाइनेंशियली इन डिस्ट्रेस। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। दैट इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन एंड फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन, एंड आई विल बी शेयरिंग द शीट विद ऑल ऑफ यू गोइंग अहेड। सो अभी वापस से हम इसी अपने प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। सो वंस वी हैव डन आवर पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम शीट, देन उसके बाद में आता है, वैसे तो आप जैसे जैसे अपने पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम शीट को भरेंगे आपको बहुत हद तक आइडिया होने लग जाएगा कि मेरा फाइनेंशियल बीएमआई कहाँ पर स्टैंड करता है। एम आई हेल्दी, एम आई नॉट हेल्दी, एम आई ओबीस, एम आई क्या, और उसके बेसिस पर फिर आपको देखना है कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ कहाँ पर है। आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, आपका डायबिटीज कितनी आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको एंजाइटी कितनी है, आपके नी पेन्स कितने हैं, और उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। पॉइंट बी, अगर आप अभी तक, सो आप इन्वेस्टर तो बाद में बनेंगे, पता लगेगा कि आप शायद पैसा ही सफिशिएंट सेव नहीं कर रहे। जब आपको ये आइडिया लगेगा तो प्रॉब्ली यू, दिस शीट, द फर्स्ट शीट, द पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम शीट विल हेल्प यू रिड्यूस नॉन नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हेन यू लुक एट देम। दिखेगा कि यार ये तो कम किया जा सकता है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। उसके बाद है सेल्फ डायग्नोस्टिक ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। उसके लिए भी कुछ एक दो एक्सेल से उन पर मैं थोड़ा सा समय के बाद आऊंगा। व्हाट आर द नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हिच यू विल नीड वंस यू रिटायर? एंड वन, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, विल बी नीडिंग मोर हेल्पिंग हैंड्स, which is going to be an expense which probably a lot of us have not catered for when they are looking at retirement. Second, जब तक हम नौकरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, चाहे व्यापार कर रहे होते हैं, कुछ भी होता है, हमारा एक सोशल सर्कल होता है। वी हैव लॉट ऑफ पीपल whom we meet, we go to office, there are seniors, juniors, there are colleagues, etc. जब आप रिटायर हो जाते हो, so you have to engage yourself socially again by being a part of a service club or RWA, etc. और वहाँ जानते ना जानते हुए पैसा लगता है। Then, when you're aging, your requirement of labor saving household devices continues to increase, and you should spend money on making your life physically easier. Whether it is purchasing those air conditioners which are 12, which can provide you cooling and heating both, whether it is buying a dishwasher, whether it is buying a robot which can provide you the cleaning services in your house, और ये सब चीजें खरीदनी पड़ती हैं, करना पड़ता है। These are the additional expenses which when you are looking at your senior ages, you should start making provisions for them. Then what are your cash flow needs now? वो जो पहले वाली शीट आपने देखी थी, उससे अगर आप देखेंगे तो आपको समरी आपका मंथली एक्सपेंसेस का मिलेगा। फिर पेंशन, आपने कम्यूट करवाई नहीं कम्यूट करवाई वो एक अलग बात है, बट उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्या है मेरे इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम फ्रॉम रिटायर्ड सरप्लस। दिस विल गिव यू अ पिक्चर ऑफ योर कैश फ्लो नीड्स। मुझे महीने में 1 लाख रुपया चाहिए, मेरे पास में 1,20,000 रुपया आता है, या मेरे पास 80,000 रुपया आता है। व्हाट आर योर कैश फ्लो नीड्स एंड हाउ दोज नीड्स शुड बी मेट। सो दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दी पर्सनल फाइनेंस एंड एक्सपेंस शीट। दिखने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स उसकी बात भी नहीं करते, but that is actually the starting point of any kind of a financial planning. Then, if you are age 55 plus, are there any pending liabilities? अगर आप 55 साल के हैं, you have already, your kids have educated, you are in receipt of a government pension, and you have made provisions for your kids' marriage also. Then, and if there are no pending liabilities, then there is absolutely no need for any individual to buy an insurance at 55 years of age or 60 years of age, even a term insurance. Why to spend money? Now, when you are 55 years of age, your focus should start moving towards increasing cash flows and managing loans। 65 से आगे लोन नहीं लेकर के जाना चाहिए।
unless until there are very special cases, so we'll not discuss them. When you're 55, you should start looking at your liabilities. Then have you, by 55, if you have not started buying a health insurance, this is the time when you wake up and look at buying a health insurance in addition to an ECHS. और अगर आपको लगता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव हिस्ट्री और यू डू नॉट हैव फैमिली लाइन जहाँ पर कि कोई बहुत सीरियस एलिमेंट्स हुई है, सो हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एक और क्या चीज करते हैं, वी रिक्वेस्ट देम टू स्टार्ट एन SIP विच इज स्पेसिफिकली मेंट टू cover any kind of a health related expense. Then when you're retiring, you're 55, you work very hard for 30 odd years, बच्चे को बड़ा किया, घर बनाया, सेविंग्स करी, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू, अब धीरे धीरे आपके पास समय आने लगेगा. जब आपके पास समय आने लगेगा तो देर आर अपॉर्चुनिटीज विच यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट एक्चुअली इंजॉइंग ऑल्सो इन योर लाइफ. यू शुड हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. देर आर लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स स्पेशली कॉर्पोरेट वाले, एंड दे टेंड टू स्पेंड most of their lives in one or two cities, like Fauji's, जो काफी travel कर लेते हैं. So they tend to, once they are retiring, they want to spend a lot of money on travel. They want to spend a lot of money on experiential travel and different kind of experiences. They start creating a provision or a small investment for a splurge kind of a thing कि हर 3 से 5 साल में मैं इसमें से पैसा निकालूंगा और दिल खोल के खर्चा करूं. So that's another thing. Now, what are the basics of investment? जब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब ये है कि मैंने अपना फाइनेंशियल हेल्थ समझ लिया, मैं रिटायरमेंट का वो समझ लिया. अगर अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, पहला बेसिक है, एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल टू पीपल हु आर स्टिल ऑन देयर यंगर साइड, 30 years, 35 years, 40 years, 45 years. Safety of principle. If you are doing anything, any investment transaction or any financial transaction where there is a safety of risk, that is not investment, that is speculation. उसके बाद में है adequate rate of risk free return. और यहाँ रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सोच के, समझ के, डेलिब्रेट करके, डिलीजेंस करके पैसा लगाया. दिस डज नॉट मीन देयर इज नो वॉलेटिलिटी. हो सकता है आज आपने एक शेयर खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपए थी और 2 महीने बाद कुछ मार्केट की मूवमेंट हुई, उसकी कीमत 90 रुपए हो गई. उससे घबराने की जरूरत नहीं है. दैट इज मार्केट वॉलेटिलिटी. अगर आपने वो शेयर खरीदने से पहले या एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझा था कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि मैं फंडामेंटली अच्छी बिजनेसेस के अंदर अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माय मनी विल ग्रो. देयर कैन बी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज. मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी तैयार प्रॉपर्टी है, मैंने अच्छे से उसका कंस्ट्रक्शन को जज किया है, मैंने उसके लीगल और टेक्निकल पेपर वर्क को ढंग से समझा है. तो हो सकता है मैंने आज वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 1 साल के बाद में भी वो 50 लाख की बिक्री है, कोई मुझे 47-48 में भी ऑफर कर रहा है. Those are market volatility. That does not mean you have taken a bad decision. That is just short term market volatility. तो अगर आप अपने उस इन्वेस्टमेंट के साथ में, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इक्विटीज में था, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटीज में था, प्रॉपर्टीज में था, अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं और अगर आपने फंडामेंटली राइट इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, देन दैट वुड बी अ रिस्क फ्री रिटर्न. और ये एडिक्वेट रिटर्न का मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न की, एक सर्टेन रेट के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना ही रिस्क है. इसको मैं एक दूसरी एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ. आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ लेट अस से ऑल दीज थ्री थिंग्स मैचिंग, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, and your car having all the safety features, it has dual airbags, it has anti-skid brakes, it has a crumple zone, and you put your seat belt on, etc., etc. Beyond a certain speed limit, any kind of an accident is going to be that much more harmful, and the chances of an accident, in spite of your skills as a driver, are going to be that much more higher, because you cannot control everything, especially not the third party behavior. So अगर आप बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी 150 की स्पीड पर वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड कार्स भी चला रहे हैं, तो भी आपके चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं. और अगर हो जाता है तो चांसेस ऑफ
चोट लगने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा का रेट लेने की कोशिश करते हैं तो आप बाजार के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में आपको चोट लगने की, फाइनेंशियल लॉसेस की संभावना बढ़ जाती है, एंड दैट कैन ऑल्सो impact you severely in the long run. Therefore, do not take unnecessary risk. Considered calculations और unnecessary risk में बहुत फर्क है. Use of leverage judiciously. This is only for officers who are less than 50 years of age. 50 के बाद में लेवरेज मीन्स किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया जाने वाला कर्जा जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है उसको लेवरेज कहते हैं। दैट्स ये थोड़ा सा एक फाइनेंशियल टर्म है। लीवर जैसे यूज करके और हेवी वेट उठाया जाता है, इसी तरह दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके और उससे कम रेट पर पैसा लेके ज्यादा रेट के ऊपर कमाई करना, दैट इज व्हाट इज लेवरेज। So this is only recommended for people who are less than 50 years of age so that they can let the leverage work over period. एक ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा जाता है जो कि ऑफिसर्स का रहता है कि हम कम्यूट करें या ना करें। जो 55 से 60 वाले हैं वो तभी कम्यूट करें अगर उन्हें ये पता है कि वो इस कम्यूटेड अमाउंट को अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर ऐसा उन्हें नहीं लगता है या उनके पास में ऐसे वेन्यूज नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जो उनको इस तरह के चीजों में मदद कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं होता कम्यूट करना। जो 60 से ऊपर है और वो अगर रिटायर हो रहे हैं, सो दे शुड नॉट कम्यूट अनलेस देयर आर मेजर लायबिलिटीज पेंडिंग। जस्ट बिकॉज आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे और मैं आपके नाम से उसको इन्वेस्ट कर दूंगा और 2 पैसा ब्रोकरेज एक्स्ट्रा कमाऊंगा, इसलिए ये रिकमेंडेशन देना, हो सकता है आपको कम्यूटेशन की जरूरत ही ना हो 60 के बाद। और उसके बाद वो जो टैक्स कैलकुलेशंस बहुत सारे लोग देते हैं कि कम्यूट पे, दैट गेट्स नलिफाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स यू डू दैट इज आल्सो टैक्सेबल। इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज फॉर 55 प्लस इयर्स, सबसे पहले तो जो 55 साल से ऊपर के हैं वो अपनी लोन लायबिलिटीज को इस तरह से रीएडजस्ट करें कि बाय द टाइम यू रीच 65 इयर्स ऑफ एज यू आर लोन फ्री। 60 to 65% ऑफ योर मनी इफ यू आर 55 इयर्स ऑफ एज should go towards debt instruments or ready to occupy small commercial properties. 60 to 65% of your investments should go towards debt instruments or ready to occupy small commercial properties. 2 बार बोला। 40%, 40 से 45% जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है अगर आप 55 के आसपास है। और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, यू कैन स्टार्ट 2 SIPs. One is to cater for your medical needs and other is, as I said, kind of splurge fund, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा types. If you're 60 plus and you're now doing a chunk of your investment, then you bring your loan liabilities again to a stage wherein it can be, all your loan liabilities can be met within 65 years of repayment. 70 to 75% of your investment should go, your retirement corpus should go towards debt instruments are ready to occupy small commercial properties to develop regular cash flows. And this is where I was saying कि हो सकता है आपको कम्यूटेशन की जरूरत ना हो, बिकॉज आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा करके कम्यूटेड अमाउंट का जो कॉस्ट ऑफ बाइंग कम्यूटेशन है उसको शायद आप मीट नहीं कर पाएंगे, जो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स खुल के नहीं सकते। 30% ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस कैन गो टुवर्ड्स the equity based mutual funds if you're 60 plus years and we wish that you have a long life. ये इसलिए है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एसेट साइज भी इस हिसाब से बढ़ता रहे कि आपका कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स आर एडिक्वेटली मेट इवन इफ यू आर, लेट्स से गॉड विलिंग यू लिव अप टिल 100 years, ताकि आपको वो एसेट बेस कमजोर ना हो। एंड व्हाट आर आवर रिकमेंडेशंस? दीज आर रिकमेंडेशंस व्हिच आर नॉन फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस बट we very strongly feel about them. One, when you're doing your retirement planning, when you're doing your investment of the retirement corpus, please include your spouse in the entire financial planning process so that the spouse is aware as to exactly where and how and what things are and where they have been put and how to handle them and part of that. Second, don't include your children in your finances for a very simple reason. Your children and you have different age priorities. There is an informational asymmetry. You look at things in a different way, they look at things in a different way. This is your money. You should be investing it the way you think fit.
यू कैन सीक देयर एडवाइस बट डू नॉट इंक्लूड देम इन योर फाइनेंसेस। आपके जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक कायदे की फाइल बनाए, सॉफ्ट कॉपीज बनाए, कीप देम हैंडी, रिड्यूस फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो 4 बैंक अकाउंट हैं, 10 इंश्योरेंस हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड फॉर ऑल। मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसलिए मैंने 5 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, और मेरे पांचों म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, और एक मेरा एचडीएफसी के साथ में, एक एसबीआई के साथ में, एक फ्रैंकलिन के साथ में। और जब देखते हैं तो उन पांचों की जो होल्डिंग कंपनीज है 80% सेम है। तो अब एक ही म्यूचुअल फंड ले लेते, वही आपको सफिशिएंटली डाइवर्सिफाई कर देता। सिर्फ इंडेक्स फंड में ही लगा लेते, उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता। सो रिड्यूस फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट टू feel happy about things. Try and simplify your finances. Use technology to simplify your finances. कहाँ आप कागज मेंटेन करने की बजाय जितने भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, अगर आप चाहें तो आप उनको अपने जीमेल के गूगल ड्राइव में एक दिन 4 5 6 7 घंटे लगा करके वहीं पर आप मैनेज कर सकते हैं। एंड दैट इज समथिंग यू कैन शेयर विद योर स्पाउस। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल क्लाउड विदाउट एनी काइंड ऑफ एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा जो भी मेरे जैसे फाइनेंशियल प्लानर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना रिटर्न दिला देंगे, ये कर देंगे, हम तो हमारे से बड़ा खलीफा कोई नहीं है, तो उनकी बातों को 50% ये मानिए कि वो एग्जैजरेशन है। आपको सेल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको 50% तक डिस्काउंट करना शुरू की। दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर 60+ years ऑफ एज। प्लीज कंसोलिडेट योर रियल एस्टेट। If you're staying in Bangalore, having a house in New Delhi is going to be a problem. Managing, sell it. Whether you reinvest that in a house in Bangalore is a different idea. वो एक अलग डिस्कशन है, बट डोंट होल्ड ऑन टू रियल एस्टेट विच इज बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस। बहुत है 80 to 100, बियॉन्ड दैट नो, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। इंडिया में अभी हमारे पास में इतने सिस्टम्स नहीं डेवलप हुए हैं कि आप डिस्टेंट मैनेजमेंट करवा पाए। रियल एस्टेट इज स्टिल अ फिजिकल एसेट, इट इज नॉट अ पेपर एसेट कि आप कहीं भी है। इट इज नॉट लोकेशन एग्नोस्टिक। एंड इफ यू आर 60+, प्रिपेयर योर विल एंड गेट इट रजिस्टर्ड। ये 10-12 हजार रुपये खर्चा होता है, कर लेना चाहिए, इससे और बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। आपको किन लोगों की जरूरत पड़ेगी? 3 लोगों की अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक कायदे का प्रॉपर्टी ब्रोकर स्ट्रोक एडवाइजर, और एक नॉर्मल रीजनेबल प्राइस का वकील जो आपका पेपर वर्क किसी किसी स्टेज पर अलग अलग टाइम पे आपको करके देता रहेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ मिक्स किया। आपको हमारे से काम करने की जरूरत अगर आप चाहें तो क्यों, वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच हैव दी वाइडेस्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग। आपको बहुत सारे और जो फाइनेंशियल प्लानर्स मिलेंगे, किसी के पास में म्यूचुअल फंड नहीं होगा, किसी के पास में रियल एस्टेट नहीं होगा, किसी के पास में इक्विटी नहीं होगा। सो देयर नरेशन इज यूजुअली, जो रियल एस्टेट वाला है वो म्यूचुअल फंड को बुरा बताएगा, जो म्यूचुअल फंड वाला है बोलेगा रियल एस्टेट में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज वी आर ऑलराउंडेड फुल सर्विस financial advisory organization. So our narrative is very very simple. We have all assets available for your needs. हम और आप बैठ करके बात करेंगे, समझेंगे, और उस हिसाब से आपको सही और शायद कायदे की सलाह देंगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर। अभी मैं आपसे 2 एक्सेल्स और शेयर करता हूँ। दीज आर वेरी बेसिक एक्सेल्स। ये है फॉर दी, वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड अ मीडियम काइंड ऑफ अ थिंग हियर। 43 ईयर्स ऑफ एज के मिस्टर राम है, उनका इस वक्त में ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है। टाइम होराइजन कम से कम 5 साल है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 to 15%, जो हमें सही लगता है। हो सकता है और बहुत सारे लोग इससे ज्यादा दे देते होंगे, तो वहां पर उस एनालॉजी को याद रखिएगा कि फॉर्मूला रेस ट्रैक जो है वहीं पर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नहीं। रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अराउंड 75 lakhs। तो इसका सजेस्टेड पोर्टफोलियो मिक्स जो है, अगेन आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। इसके अंदर आप 3 तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें सजेस्टेड है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, आपने इक्विटी रियल एस्टेट या दोनों में मिला करके पैसा डाला 33,75,000 रुपये, डेट में आपने डाला 22,50,000 रुपये, गोल्ड में आपने डाला 11,25,000 रुपये,
और एकदम लिक्विड रखा 7.5 लाख रुपए, लगभग 10% के आसपास का रिटर्न आया। थोड़ा सा मॉडरेट गए, इसी को ट्विक किया, इक्विटी रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, बाकियों से घटाया, तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 11.5% के आसपास। और थोड़ा सा जोशीले हो गए कि आज तो अभी तो लगता है कि हम हैंडल कर पाएंगे इस तरह से, तो आपने थोड़ा सा इक्विटी और रियल एस्टेट के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज किया, बाकियों को कम किया, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये सब चीजें हम अपने क्लाइंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर करते हैं। दिस इज अ डू इट योरसेल्फ टूल, आई विल सेंड इट अक्रॉस। आप इसमें अपने फिगर्स प्लग इन कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से, एंड यू कैन गेट अ फेयर आइडिया एज टू हाउ I should work on investment of my retirement corpus. I have one more financial do-it-yourself kind of a sheet जिसमें कि हम आप अपने आप से देख सकते हैं। अगेन इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट इसमें आपको सिर्फ ये प्लग इन करना होता है। दिस इज मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग वेल्थ, वो था रिटायरमेंट पर्पस की तरफ। मैं आपसे ये दोनों तीनों शीट शेयर कर दूंगा। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.